Sit. Chalo analysis. This bridge, which we are doing it today and tomorrow, I'm not interested in solving some unless this bridge is developed properly. Please understand, this is one of the most crucial, important from 12th and foundation point of view. And it is not only derivative which we are targeting. Please understand why I'm saying and stressing this as important. आज और कल लेक्चर में ये पूरा परफेक्शन पे लेके जाऊंगा मैं, बट स्टिल समवन माइट फाइंड इट इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं. ये अगर प्रॉपर हो गया तो 12th में इंटीग्रेशन करके एक टॉपिक है जिसके 3 पार्ट्स है, indefinite, definite and application, which constitutes around 12 to 14 marks out of 40. मतलब अगर तुम प्रैक्टिकली सोचेगा ना तो 40 मार्क्स का मैथ्स है ना जो 12th में, उसमें से डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये मिला के 12-14 मार्क्स होता है, समथिंग 12 मार्क्स पकड़ के चलो. इंटीग्रेशन के जो 3 पार्ट है वो भी मिला के कुछ 12-14 मार्क्स होता है. मतलब ऑल टुगेदर दोनों डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का सारा पार्ट मिला के it comes to around 30 marks out of 40. फिर 2 ही टॉपिक बचता है, एक लॉजिक और मैट्रिसेस which is of 20 marks and that is easy to score. तो 10 मार्क तो रोकड़ा है, वो तो हम लोग टाइम पास करेंगे समर वेकेशन as well. Is that clear? But this is the most important 2 lectures. जब तक ये ग्रिप में नहीं आएगा हम आगे के टॉपिक्स में हमेशा बाउंस होंगे, बिकॉज आगे के टॉपिक में ये चीज बहुत जरूरी है समझना. इज दैट क्लियर? व्हिच वी आर डूइंग इट टुडे. क्लियर है? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद बेसिक 7 formulas? Yes or no? Yes. हाँ, तो obviously we'll re-revise it again today. With course you can see, because मैं बोर्ड पे लिखा नहीं है, so you can see and revise, and I want in the same sequence. चलो, first is derivative of constant is 0. Derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Derivative of x raised to 1. Derivative of x is 1 minus 1 by x square minus 1 by x square. Derivative of a is 2x is a is 2x into the 3. Derivative of e is 2x is concept is clear. What is the last rule we have written? UVW वो अपने सम्स में लिखा था, लेकिन नोट सेक्शन में चेक कर. हाँ, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैं रूल बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव का रूल लिखा है ना, कांस्टेंट रूल लिखा है, which is your I think 5th rule. हाँ, अभी जो हम लोग लिख रहा है ना वो भी एक रूल की तरह लिखेंगे. It is actually not a rule, but it is actually a part of derivative type. लेकिन हम लोग उसको रूल की तरह कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट फंक्शन के बाद. जगह छोड़ा है ना हमने? Yes or no? Okay, लिखो. If the question of a derivative, if the question of a derivative is a composite function, is the composite function, then we first calculate normal derivative. We first calculate normal derivative according to the type of formula. ये तुम्हारा रूल है. Now before we crack this, we are not starting with the sums.
No, this is very easy if your basic formulas are very clear. Now understand one thing, 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में दो ही सम ऐसा है जो इसको लेके है. So good colleges like Podar, SIs, all colleges are good. No discrimination. Okay, all colleges are not good. Yes. But such not good colleges like Podar, MCC, or maybe SIS may ask such questions, though there are only two questions of composite part in books, in your main basic government textbooks. But we are going one step ahead and preparing ourselves. Clear है? Okay. Now, मैं बैठ के लिखिएगा and I'll start explaining, but please focus on the board, not here and there. ये मेरे को हर एक बंदे का पावरफुल चाहिए. अगर ये नहीं होता है ना पावरफुल, इसको लेके इंटीग्रेशन भी डैमेज होएगा. तो जब तक ये पावरफुल नहीं होता है ना, स्टिल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आफ्टर टुडे या टुमारोज लेक्चर, यू प्लीज टेल मी, विल सिट वन ऑन वन एंड मेक इट पावरफुल. बट यू हैव टू मेक दिस पावरफुल, क्योंकि मुझे तुम्हारा फाउंडेशन में यही पार्ट ओरली चाहिए, ओरली. और वो होगा, लिखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ओरल आंसर आएगा. एंड ट्रस्ट मी, ये होता है. इज दैट क्लियर? सो वी आर डूइंग इट अकॉर्डिंगली. ठीक है? Yes or no? Okay, चल. Now one of you might please read the rule. उधर से जिसका आवाज बड़ा है, कौन पढ़ेगा? पीछे पीछे पढ़ेगा नहीं? पीछे चाहिए मेरे को. नमन किधर है? क्या शर्माता है यार? चल पढ़, चल पढ़, तू पढ़ ले जोर से. रूल जो लिखा है ना, आराम से ना, लेकिन एकदम आराम से. जोर से आवाज नहीं आ रहा है भाई. With the question of a derivative of composite function, then we first calculate normal derivative according to the type of formula and multiply it by derivative of composite function. Composite function means combination of a function and a type, or the function itself, not a standard formula. हाँ. Now what is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या है? हमने सबसे पहले क्या लिखा है कि फंक्शन कौन सा होना चाहिए इसके लिए. इफ द क्वेश्चन ऑफ अ डेरिवेटिव इज अ composite function. Now please understand, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे ना, वो ऐसा आता था. चलो, what is derivative of? Can everybody see this? Yeah. Last benches. चलो इसका आंसर बोलो. This is called direct formula. मतलब जो फॉर्मूला का टाइप है x रेस टू n, वही पैटर्न में ये आ रहा है. हाँ ना? तो इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू डू नाउ, बिकॉज हमने इसको बरोबर समझ के, पैटर्न समझ के, फॉर्मूला याद रख के अभी हमने सॉल्व किया. तो अभी तक सम्स ऐसे ही आ रहे थे, जिसमें एडिशन वाला था, सब्ट्रैक्शन वाला था, मल्टीप्लीकेशन वाला था, डिविजन वाला था, एंड सो ऑन. नाउ यही क्वेश्चन मैं ट्विस्ट कर रहा हूं. अंडरस्टैंड दिस. What is the difference? Still, what is the difference? अंदर मतलब किधर? बेस की जगह पे. मतलब ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला टाइप में जा रहा है. चलो ये बताओ पहले सिर्फ, अगर ये बेसिक फॉर्मूला होता तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे? x रेस टू n. हाँ या ना? तो कैन आई से n की जगह पे तो सेम टर्म है. कौन सा टर्म चेंज हुआ है? x. मतलब हमारा x की जगह पे कुछ और दिया हुआ है, खाली x नहीं है. खाली x होता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता था. हाँ या ना? हाँ. तो x की जगह पे कुछ भी और होगा ना, विच इज इन x ओनली टर्म्स, x स्क्वायर प्लस 5 है. लेकिन वो खाली x होना चाहिए था, उसके बदले क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 5.
So that becomes your composite part. कॉम्पोजिट पार्ट का मतलब x की जगह पे कुछ और टर्म दिया है. इट इज नॉट खाली x. सो दिस काइंड ऑफ होल टर्म बिकम्स कॉम्पोजिट फंक्शन. तो अभी इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करने का वो हमको रूल में लिखा है हम, या वो हमको रूल फॉलो करना है. सबसे पहला तुम्हारा एक्सपर्टीज कहां होना चाहिए. क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए अरे ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिट पार्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए. और वो कैसे समझेगा. इट इज वेरी सिंपल. एक्स की जगह पे जो बेसिक फॉर्मूला में एक्स होता है उसकी बदले कुछ और दिया है तो वो हो जाता है कॉम्पोजिट पार्ट. इज दैट क्लियर. ओके लेट अस चेक बाकी दूसरा एग्जांपल्स भी. ये स्क्रोल क्यों नहीं हो रहा है भाई. इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे. पहले कॉम्पोजिट फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं ना वो समझो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेंज हुआ ये चेंज नहीं हुआ क्या बात. चलो कोई नहीं आया ना. चलो मेरे को इन शॉर्ट स्क्रीन शेयर स्टॉप करके सब करना पड़ेगा. एनीवेज दैट डजंट मैटर. नाउ अंडरस्टैंड दिस. सो इज द नोटेशन. चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस. इसका आंसर क्या है. ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अभी हम लोग दो वर्ड्स में बात करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कॉम्पोजिट फॉर्म. इज दैट क्लियर. अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स किधर है. रूट के अंदर. तो कॉम्पोजिट फॉर्म में रूट रूट की जगह पे ही रहेगा, लेकिन किसकी जगह पे कुछ और रहेगा. एग्जैक्टली. तो कैन आई से डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 3x plus 7. Now can I say this is composite function. अच्छा इसमें composite part क्या है. 3x. परफेक्ट. 3x प्लस, क्योंकि रूट में x की जगह पे क्या है कुछ और है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. यस और नो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज. एक बार ये समझा ना फिर बहुत इजी है. तो ये रूल कैसे अप्लाई करने का वो भी हमने लिखा है. दैट इज वेरी सिंपल. लेकिन रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर. इतना क्लियर है. चलो ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. डेरिवेटिव a रेस टू x. इसका आंसर है a रेस टू x. परफेक्ट. तो नाउ आई राइट दिस एज डेरिवेटिव ऑफ 7 रेस टू x स्क्वायर प्लस 5. अभी a नहीं होएगा. a इज कांस्टेंट. बेस कांस्टेंट है तो बेस इधर भी कांस्टेंट है. पावर में क्या होना चाहिए था. x की जगह पे क्या है x square plus 5. So that becomes your composite part and the whole function becomes your composite function. Is that clear? Yes or no? Are you able to recognize? मतलब composite part का मतलब क्या होता है. x की जगह पे कुछ और पार्ट टर्म दिया रहे. That becomes your composite part. क्लियर है. हाँ तो अभी नोट करके लिखो आगे. Composite part means composite part means इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो. In place of x, in place of x, another term is given. In place of x, another term is given. Is that clear? Hi, Anna. Okay, now let's understand the rule, how to apply.
चलो सपोज हमको ऐसा दिया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 द होल रेज टू 6। चलो कैन आई से ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसमें कॉम्पोजिट पार्ट कौन सा है? परफेक्ट। ये कौन सा ओरिजिनल पैटर्न का फॉर्मूला में जाता है? ओके अगर ये x रेस टू 6 होता तो हम लोग इसको क्या लिखते थे? मतलब 6 आगे x रेस टू, परफेक्ट है। नाउ check the rule what we have written के how to calculate this type of derivative। चल पढ़ पार्थ और जोर से, ऐसे तो बहुत आवाज बड़ा होता तेरा। Composite part means नहीं रूल पढ़ वापिस, वही टर्म जो आज लिखा हो। if the question if the question of a derivative is a complete function, then we first calculate normal derivative according to the type of formula and multiply it by derivative of composite। हाँ सबसे पहले रुक जा, सबसे पहले क्या करना है? वी अप्लाई इट एज पर नॉर्मल डेरिवेटिव। मतलब अगर ये x रेस टू n होता तो हम लोग n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन डालते। अगर ये x रेस टू 6 होता तो वी वुड हैव अप्लाइड 6 इंटू एक्स रेस टू 5। तो इधर उसके हिसाब से क्या अप्लाई करेंगे? 6 आगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 द होल रेस टू 5। ये नॉर्मल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला डाला, दिस वी विल कॉल इट एज नॉर्मल डेरिवेटिव। हाँ या ना? इसको समझ में आया? एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डेरिवेटिव ऑफ, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया हमने? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नॉर्मल डेरिवेटिव डाला इसमें, एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट पार्ट। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? कॉम्पोजिट पार्ट क्या है ना वो रिकॉग्नाइज करना। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? अच्छा ये इधर खत्म नहीं हुआ है, यू हैव टू सॉल्व इट फर्दर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? इज इक्वल टू, कैन आई से ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा। अभी डेरिवेटिव किसका होएगा? कॉम्पोजिट पार्ट का, तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैन आई से ब्रैकेट में दो टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, परफेक्ट 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव, तो कैन आई से ये ब्रैकेट का आंसर 2x आएगा। अच्छा वो 2x 6 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा 12x इंटू द होल रेज टू 5। इज दैट क्लियर? यस और नो? लिखो एग्जांपल 1 करके। Last benches, can you see this? Not my hand, this. हाँ बोली देखना वो उधर बटन है, वैभव चेक करना प्लीज। आराम से देख बाकी अभी दिख रहा है? कौन सा ऊपर वाला? हाँ बटन मेरे जेब में कितने? अभी बराबर है। वैभव ये वाला बंद कर बस। आया ना? ये वाला चला तू सब सो जाते हैं। अबे मस्ती नहीं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर रहा हूँ।
एक तो लिखने को नहीं जम रहा है, सेम हो रहा है, सेम ही है, तुझसे ज्यादा में और फिर फाइनल Those who are online, पंत तुझे स्क्रीन दिख रहा है क्या? पंत पंत है। ओके ओके, अच्छा तू भी ऑनलाइन है, तू डबल पैसा वसूल कर रही है? हाँ हाँ नहीं, थैंक यू, गुड। चलो हुआ, हाँ लिखा, हाँ ओके। इसको हम पूरा समराइज भी करेंगे हाँ? लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस करो। दोज हु आर न्यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ऋषभ, रितिका, हाँ है ना? ओके नेक्स्ट, लिसन नाउ, चलो जरा ध्यान से एग्जांपल्स लिखो बराबर से। डेरिवेटिव ऑफ रूट 3x plus 7, डेरिवेटिव ऑफ रूट 3x plus 7, चलो ये कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ, उसमें कॉम्पोजिट पार्ट कौन सा है? 3x plus 7। तो रूल के हिसाब से अगर ये रूट x होता तो आंसर क्या होता? तो रूट 3x plus 7 का नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 रूट ऑफ 3x प्लस, ये नॉर्मल डेरिवेटिव हो गया नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से, एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय डेरिवेटिव ऑफ composite part which is 3x plus 7। समझ में आया? धैर्य, yes or no? चलो नेक्स्ट, 1 upon 2 into root of 3x plus 7, चलो इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव, व्हाट इज 3 इंटू x का डेरिवेटिव? 3 कांस्टेंट है, x को डेरिवेटिव जाएगा विच इज 3 इंटू 1 प्लस 0। क्लियर? सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, न्यूमरेटर में 3 बचेगा अपॉन 2 इंटू रूट 3x plus 7। Is this clear? समझ में आया? Hey, done with this? Yes. Anybody writing? Okay. So next. Derivative of 1 upon 4x plus 10. चलो ये कौन सा टाइप है? 1 upon, what is derivative of 1 upon x? minus 1 by, अच्छा यहाँ कॉम्पोजिट क्या है? 4x plus
तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 अपॉन 4x प्लस 10 द इनटू डेरिवेटिव कॉम्पोजिट पार्ट क्या है? 4x plus 10. Is this clear? Yes. ऋषभ समझ में आया? -1 अपॉन 4x plus 10 the whole square. चलो अभी इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस 10 का डेरिवेटिव 0. सो न्यूमरेटर फाइनली क्या होएगा? अपॉन 4x plus 10 the square. Is this clear? इसको पावरफुल करो. अभी सिंपल सिंपल लग रहा है क्योंकि मैं एग्जांपल वैसा वैसा दे रहा हूं, लेकिन ये पावरफुल होना ही चाहिए रिकॉग्निशन में. लिखा सब लोग ने? एनीबॉडी लेफ्ट आउट? चलो लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट वन. Derivative of 7 raised to x square plus 5x. ये कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मूला है? a रेज टू x. तो बेस बरोबर है, बेस कांस्टेंट ही है ना. x की जगह पे क्या है? x square plus, that becomes your composite part. So what is a raised to x का डेरिवेटिव? a raised to x into, तो 7 raised to x square plus 5x का नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? परफेक्ट. 7 raised to x square plus 5x into log 7. ये नॉर्मल डेरिवेटिव a raised to x into log a के पैटर्न में. क्लियर है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? व्हाट इज योर कॉम्पोजिट पार्ट? x स्क्वायर प्लस 5x. तो फाइनल आंसर आएगा इसका 7 रेज टू x स्क्वायर प्लस 5x इंटू लॉग 7. हाँ, अभी ब्रैकेट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1. तुम लोग डायरेक्ट 2x प्लस 5 लिख सकता है इफ यू आर कंफर्टेबल. सो फाइनल आंसर विल बी 7 रेज टू x स्क्वायर प्लस 5x इंटू लॉग 7 इंटू 2x प्लस 5. वो लॉग 7 लाइन में होना चाहिए. डू इट केयरफुली. क्लियर है ये? यस और नो? चलो नेक्स्ट. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x square plus 5x plus 6. चलो बोलो, कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मूला में जा रहा है? e raised, यस. बंद करूं? दरिया प्लीज नीता मैम को बुला लेना खाली. थैंक यू दरिया. पीछे वाला चालू है, एकदम लास्ट वाला.
चलो लेट्स स्टार्ट। वो लिसन, ये कौन सा फॉर्मूला टाइप है? और एसी बंद करो। पाछळ वालू चालू है ना? ये बंद જ છે, ચાલુ નથી તો રિમોટ અહીંયા રાખી જાઓ, ધૈર્યને આપી દો। આઈ થિંક ચાલુ છે। ક્યાં ઈ રેવા દો, આ બંધ કરો, આ મોઢા પર આવતું ઈ ચાલુ છે, ઈ રેવા દો, ઓલું બંધ કરો। હા તો ગરમી ના સરે, બસ બસ બસ। શું થયું? ઓકે વેટ, कॉम्पोजिट पार्ट क्या आ रहा है इधर? ओके, तो व्हाट इज e raised to x का डेरिवेटिव? दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अवर मैथ्स लाइफ। जो क्वेश्चन है वही ठीक है। तो डेरिवेटिव e raised to x square plus 5x plus 6 का आंसर रिमेन्स e raised to x square plus 5x plus 6। दैट्स योर नॉर्मल डेरिवेटिव into derivative of x square plus 5x plus 6। That's your composite part का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है? Yes or no? Yes. तो नेक्स्ट स्टेप में e raised to x square plus 5x plus 6 remains as it is into derivative of, चलो x square का डेरिवेटिव प्लस 5 into x का डेरिवेटिव प्लस 6 का डेरिवेटिव 0। those who are comfortable can do it directly। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। तो फाइनल आंसर आएगा e raised to x square plus 5x plus 6 into 2x plus 5. Is that clear? किसी को भी कोई डाउट? अभी धीरे धीरे ग्रिप आ रहा है इस पे? श्योर ना? गुड। हुआ लिख के? एनीबडी राइटिंग? लिखो, फिनिश करो। एक के लिए घुस गया अंदर है। Done? Okay, last one. इतना जल्दी थोड़ी खत्म होएगा। चलो, डेरिवेटिव ऑफ log 4x plus 7 ये कौन सा टाइप है? log x का डेरिवेटिव। व्हाट इज द कॉम्पोजिट पार्ट हियर? x की जगह पे कुछ और है, वो कॉम्पोजिट पार्ट। तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन into composite part derivative of 4x plus 7। So this is 1 upon 4x plus 7 into, चलो ब्रैकेट का डेरिवेटिव 4 into x का डेरिवेटिव 1 plus 7 का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का आंसर आएगा अपॉन 4x plus 7। Is this clear? बोल। 1 by x plus 7 हो सकते हो। 1 by plus 7 क्यों?
फोर को एक मिनट रुक जा। ये हुआ। हाँ सुन, मेरे को पहले ये बता, कैन यू सपोज इफ इट इज x अपॉन x प्लस y, कैन यू कट दिस x? अभी समझा? नीचे प्लस में है ना बेटा, ध्यान रखो, ऐसा लालच आता है पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलो हुआ। इज दिस क्लियर? यस और नो? ओके नाउ लिसन, अभी नोट सेक्शन ही चालू है ना ये अपना। हाँ, आई वांट वन फुल पेज है। सुनो क्या करना है, लिसन, क्योंकि मैं इधर है ना क्लिक वाइज करके पेज चेंज करते रहूंगा। व्हाट आई वांट इज, लिसन टू दिस केयरफुली, I want you to divide the page into two parts, जिसमें एग्जैक्ट मार्जिन भी यूज करो। मार्जिन यूज करो, डोंट वरी, मार्जिन यूज करो। रुको पहले देख लो भाई, रुको, बाद में बोलना नहीं, जगह नहीं है, रुको। लेफ्ट साइड यू विल राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट साइड यू विल राइट कंपोजिट फॉर्म। रुको भाई, सुनो, ये फर्स्ट बेंच वाले ही नहीं सुन रहे। अच्छा एक मिनट, लिसन प्लीज लिसन, व्हाई आई एम सेइंग यू टू वेट। मेरे को दो फॉर्मूला लिखने दो, तुमको जगह का मतलब जजमेंट आ जाएगा कि हाउ मच टू रीड। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। उसमें इसका कॉम्पोजिट फॉर्म कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट का कुछ भी कॉम्पोजिट फॉर्म। अभी मैं k लिखूं या k रेस टू 3 लिखूं, दोनों सेम ही होता है, कांस्टेंट। k लिखूं या रूट k लिखूं, इट इज कांस्टेंट ओनली। इज दैट क्लियर? ओके, फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n इंटू x रेस टू n माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। इसके सामने इसका कॉम्पोजिट फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे, जो तुम्हारा एक लाइन में बैठना चाहिए, तो दैट कंपैरिजन में पढ़ाई इजी हो जाएगा। ax प्लस बी रेस टू n, क्लियर है? अच्छा इसका आंसर बोलो, n इंटू ax प्लस बी रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी। बस इतना ही लिखना है, तो डेरिवेटिव x प्लस बी का कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये तुम्हारा ऐसा लाइन में बैठना चाहिए कंपैरिजन में, और एक एक लाइन छोड़ के दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? नाउ डू इट। वाह, ओके नेक्स्ट। x के बाद डेरिवेटिव कौन सा है? x के बाद इट इज रूट x। डेरिवेटिव ऑफ, हाँ क्या हो गया? एसी, वो एसी का रिमोट नहीं है, वो उधर से ही चालू होएगा। क्या हो गया? तो हुआ ना चालू। तू आगे आ, इधर मस्त हवा आ रहा है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो इधर आएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। चलो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव क्या होएगा? 1/2 रूट ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी।
into derivative of ax plus b. लिख के रखो ऐसा. क्यों नहीं लिख रहा है रे? नहीं नहीं देवांशी. बहुत पीछे बातें कर. मोक्षित मेरे को कोई ऐसा बोलता था ना. आप अभी आपका मान. नहीं रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट लेडीज ऐसा बोलने का. रिस्पेक्ट लेडीज इसलिए हम बैक आंसर नहीं करते. लेडीज के दोस्त क्लास. चलो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b. इसका नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन ax प्लस b द इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b. Hey, is this clear? हुआ लिखा है आता. Anybody writing this? No. Yes. So next. That's like all I tried. That I guess what. I would roll it initially. Roll it. Then they took me to the rainy side. इसमें नहीं हो रहा है. They were like, didn't share it. वही कर रहा हूँ. तभी इधर शेयर होने में. ये देख. अभी प्रॉब्लम क्या है अभी नहीं होने. वो एनोटेशन सिलेक्ट कर रहे ना लिखने के लिए फिर नहीं होता है. मतलब मेरे को एनोटेशन बंद करके वापस है. चलो एनीवेज नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ a raised to x. a raised to x into log a. तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ a raised to. नहीं a यूज मत करो कंफ्यूज होएगा. a ऑलरेडी बेस में है. यूज इट एज bx प्लस c. bx प्लस c यूज करो. is equal to a raised to bx plus c into log a into derivative of bx plus c. फिर नेक्स्ट आएगा डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x. तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to अभी इधर ax plus b यूज करो चलेगा. is equal to e raised to ax plus b into derivative of ax plus derivative of ax plus b. Derivative of log ax plus b. ये भी नहीं बाद में.
वो किधर जा रहा है? इधर ही है ना वो। क्या पता है ना नहीं इधर ही आएगा। उधर जाएगा तो भी 1 महीने बाद इधर ही आएगा। चलो, इज दिस क्लियर? Yes or no? ए चेक करो, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला का कॉम्पोजिट पार्ट लिख दिया, एक्सेप्ट 2 कांस्टेंट का नहीं होता है एंड खाली एक्स का नहीं होता है। ऐसा क्लियर? एक्स का पावर 1 है ना, तो अगर एक्स प्लस बी लिखेगा तो इट इज नॉर्मली एडिशन वाला डेरिवेटिव। चलो, इज दिस क्लियर? हाँ है ना? चलो, कम टू योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 138। बोल रहा था ना, एक रोल हो रहा है, लेकिन वो स्क्रीन पे है। वो उसका सेटिंग है, वो अभी इन लोग ने किया नहीं है, वो आता है लेकिन मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, वो टाइम जाएगा इसका। घड़ी घड़ी कौन ये फटाफट होता है ना। चालू तो है, चालू तो है, बंद है, करना उधर से ही चालू है। Now we are starting with page 138 पे चेक करो, क्लास वर्क 1 करके कंपोजिट फंक्शन का मिला क्या सबको? ओके, now listen, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वन, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वन, it is given as y is equal to root of x plus 1 by x। हाँ है ना? चलो, ये कौन सा टाइप में आता है? रूट एक्स। तो पहले डायलॉग है, डायरेक्ट नहीं करेगा कोई भी, उधर एग्जाम्पल था डायलॉग। डिफरेंशिएटिंग वर्ड हैज टू बी फुल with respect to x, दोनों बाजू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y is equal to डेरिवेटिव ऑफ रूट x plus 1 by x। ए पढ़ सॉल्व करो, मैं भी वेरी सॉरी बोल देगा। भी यही बोला। नहीं उल्टा है, रिवर्स है। आपने बोला वेरी सॉरी, हमने बोल के आए। गलती तो उन्होंने की। दैट्स ओके, वी आर बीइंग कंपैशनेट। dy by dx is equal to, चलो, रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स का नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 बाय 2 रूट ऑफ x plus 1 by x इंटू कंपोजिट पार्ट क्या है? x plus 5। तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाय x। चलो, इज दिस मच क्लियर? यस और नो? कर दो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप करो ध्यान से। क्या हो रहा है?
The root is there with answer. It's root x को हम लोग क्या आसान ये यहाँ तक लिखा सब लोग ने? एवरीबडी क्लियर? श्योर ना? Yes, तो नेक्स्ट स्टेप लिखो चलो. So next step, that is equal to 1 upon 2 into root of x plus 1 by x into, चलो x का डेरिवेटिव, and what is 1 by x का डेरिवेटिव? तो बीच में जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? Is that clear? Yes or no? That's your. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको. 1 upon 2 into root of, अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x square plus 1 upon x, और इधर आएगा x square minus 1 upon x square. Is this much clear? चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नीचे का जो रूट एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम रूट एक्स अपॉन 2 into root of x square plus 1 into x square minus 1 upon. चलो अभी नीचे क्या बच रहा है? x square है ना? तो कैन आई राइट x square as रूट x into रूट x कितना होता है? into x. क्यों ऐसा लिखा? एक रूट x कैंसल हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा. अभी जो बचता है वो तुम्हारा आंसर. तो दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर. नाउ देयर माइट बी थॉट्स कि सर मैं इधर ही रखूं तो चलेगा कि नहीं. तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो हमको पता है आंसर क्या आने वाला है, लेकिन अगर ये 3 मार्क्स का है तो यू हैव टू सिंप्लीफाई. देयर इज नो अदर ऑप्शन. इज दैट क्लियर? तो x square minus 1 upon 2 into root x square plus 1 into root x into x. That is your final simplified answer. Clear है ये? Anybody having any doubts in this? हुआ ये सबका? चलो डन. Anybody writing? Request the area. Those who have finished, please try the second one. There you're done. चलो चेक करो. What is your second question? Second question check करो. It is y is equal to, कौन सा रूट है? क्यूब रूट ऑफ a square plus x square. चलो ना लिसन. सबसे पहले लिसन. इधर सीधा डायलॉग नहीं लिखेगा है, नहीं सुनो. इसलिए मैं बोला ध्यान दो. हर वेराइटी डिफर होएगा. पहले कभी भी चालू करने से पहले चेक करो ये कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है. डू वी हैव क्यूब रूट ऑफ डेरिवेटिव? हमारे पास रूट एक्स है,
Is it root x? This is cube root. We don't have cube root में डेरिवेटिव, तो करेगा क्या? करेक्ट, इसको x raised to n फॉर्म में लेके जाओ पहले. मतलब कैन आई राइट दिस क्वेश्चन एज y is equal to a square plus x square raised to 1/3. Can I write it this way? क्यूब रूट को 1/3 लिख सकता है ना. नाउ ये कौन सा टाइप हो गया? x raised to what is the composite part? A square plus x square. Is that clear? अभी डायलॉग मारो. क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, फिर डायलॉग शुरू करने का. समझ में आया? तो जो भी डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं है उसको फॉर्मूला फॉर्म में डाल के फिर शुरू करने का. तो डायलॉग आएगा डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of y is equal to derivative of a square plus x square raised to 1/3. So dy by dx is equal to, चलो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे हम लोग? आगे क्या आएगा? 1/3 आगे आएगा into a square plus x square raised to, फ्रैक्शन में कैसे याद रखा था हमने? न्यूमरेटर माइनस 1/1 minus 3 क्या आएगा? So this will become raised to minus 2 by into derivative of a square plus, समझ में आया? Do it carefully. Any doubts in this? Sure? हे ऋषभ मोबाइल छोड़, तो उधर लिखना है ऊपर, बुक इधर रख दे. चलो everybody clear? Yeah. Okay, what will be your next step now? 1/3 into a square plus x square raised to minus 2/3 वो as it is रहेगा. अच्छा, what will be the derivative part? A square का derivative क्यों 0? Exactly, वो स्क्वायर में x ही नहीं है और x इधर भी नहीं है, वो क्या हो जाता है? खाली a होता तो हम लोग 0 डालते थे, तो a 2 बार है, स्क्वायर में है तो 0 आएगा. अच्छा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 प्लस 2x. देखो स्टेप में बरोबर से इतना लिखा सब लोग ने. स्क्रीन चेंज होएगा एवरीबॉडी. तो ये आएगा 1/3 इंटू a square plus x square raised to minus 2/3 into 0 plus 2x. अभी नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव में लिखो और 0 plus 2x होता है 2x, तो न्यूमरेटर में बचेगा 2x अपॉन 3 into a square plus x square raised to 2/3. Is that clear? Negative index positive किया. Any doubts in this? X raised to n है ना, तो n आगे आता है ये वाला, वो तो नीचे ही है. ये देख, ये 2x बचेगा, ये न्यूमरेटर है और ये नीचे आ जाएगा माइनस वाला. चलो, दिस इज योर सिंप्लीफाइड आंसर. हे बाबा,
बाजू वाले बात करेंगे, 2 बार जाएगा। चलो थर्ड वन, स्टार्ट विथ द थर्ड वन। Everybody clear with this pattern? Any doubts? Start third one. Y is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x whole bracket raised to 9. ये कौन सा टाइप में है? ओके, व्हाट इज द कॉम्पोजिट पार्ट? परफेक्ट। तो अभी ये डायलॉग से शुरू कर सकता हम लोग। मारो डायलॉग। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों बाजू डेरिवेटिव, derivative of y is equal to derivative of 5x cube minus 4x square minus 8x the whole raised to 9. Vaibhav, leak. Seriously, this is very important. dy by dx is equal to, चलो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? 9 into 5x cube minus 4x square minus 8x the whole raised to कौन गलती किया? जश मस्ती मत करा। डेरिवेटिव ऑफ 5x cube minus 4x square minus 8x. आराम से करो, मस्ती नहीं, इसको पावरफुल करना है। हुआ ये क्लियर है? एवरीबॉडी करो इसका डेरिवेटिव, कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव ध्यान से कैलकुलेट करो। यहां तक लिखा बरोबर से? एनीबॉडी राइटिंग? अरे है ना आगे का स्टेप? चलो नेक्स्ट स्टेप में आएगा dy by dx is 9 into 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 8 into, चलो डेरिवेटिव में 5 कांस्टेंट है, व्हाट इज x क्यूब का डेरिवेटिव? 5 into 3x square minus 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव minus 8 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली ये आएगा 9 into 5x cube minus 4x square minus 8x whole bracket raised to 8 into सेकेंड ब्रैकेट क्या आएगा? 15x square minus 8x minus 8. That's your final answer. Is this clear? Any doubts in this? करो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। ये आवाज नहीं आ। Now this is increasing धीरे धीरे, ध्यान से। Anybody writing this part? Sure. ऋषभ क्लियर है ना? रितिका
All done, बरोबर? Any other person? Aryan. चलो यार, listen now, ध्यान से. Question 2 का first sum. Question 2 का first sum. Y is equal to log of log x. सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मूला पैटर्न है? ओके. व्हाट इज द कंपोजिट पार्ट? लॉग एक्स ही कंपोजिट पार्ट है, क्योंकि लॉग का ब्रैकेट में क्या होना चाहिए था? एक्स. उसकी जगह पे लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स ही कंपोजिट पार्ट हो जाता है. क्लियर है? ओके. मारो डायलॉग. Differentiating with respect to x. दोनों बाजू डेरिवेटिव. Derivative of y is equal to derivative of log of log x. तो ये आएगा dy by dx is equal to, चलो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by x. तो log of log x का डेरिवेटिव होएगा 1 by log x इनटू, क्योंकि x की जगह पे ये कंपोजिट पार्ट है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x. Is that clear? तो ये आएगा dy by dx is equal to 1 by log x into, what is derivative of log x? 1 by x. So this you can simplify as 1 upon x log x. x को आगे लिख दो. So this you can simplify it as 1 upon x log x. Is this clear? Any doubts? समझ रहा है ना सबको? करो second one ध्यान से. Those who have finished, start with second. And so the second. X की जगह पे कुछ और है, वो समझ रहा है ना, बस उतना इम्पोर्टेंट. बाकी बेसिक फॉर्मूला आएगा तो ये सवाल. बोल गया. देखो मैं पहले बोला मोबाइल छोड़. और तुझसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. फोन ऋषभ को कर रहा है लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. So I don't understand whether he's jealous or whether he's protecting Rishabh. So Naman, you have to be aware. नमन का ही है भाई. ये मस्ती मत करो, ये सब करो बरोबर से. सेकंड करो चलो. ये हुआ, कोई लिख रहा है इसको? वो सावन. ए डन विद दिस. कोई लिख रहा है? Y is equal to log of 10x raised to 4 plus 5x cubed minus 3x square plus 2. Enough now. What is the composite part here?
10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. Everybody clear with this? Maro dialogue. Differentiating with respect to x. Derivative of y is equal to derivative of log 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to, चलो नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? ए 1 अपॉन लॉग कैसे? लॉग कैसे आएगा? लॉग x का डेरिवेटिव क्या है? खाली x वाला टर्म आना चाहिए ना. तो 1 अपॉन 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2 into डेरिवेटिव कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव आएगा 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. क्लियर है? हाँ हाँ कम भी करें. ए यहाँ तक हुआ सबका? एवरीबडी डन? कोई लिख रहा है यहाँ तक? तो dy by dx is 1 upon 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2 into, चलो 10 as it is, x raised to 4 का डेरिवेटिव आएगा 4 into x cube plus 5 as it is, x cube का डेरिवेटिव आएगा 3x square minus 3 as it is, x square का डेरिवेटिव 2x plus 2 का डेरिवेटिव 0. कंपोजिट पार्ट का डेरिवेटिव लाइन में लिखो तुम लोग. तो दिस विल बी 1 upon 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2 into, ये होएगा 40x cube plus 15x square minus 6x. Is that clear? So finally numerator आ जाएगा 40x cube plus 15x square minus 6x, the whole upon 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. Clear है? करो करो थर्ड सम. वो सर क्वेश्चन 3 भी हो गया. सर क्वेश्चन 3 के सेकंड में ए है. ठीक है. ओके ए ले ले. सब हो गया. थर्ड सम के बाद थर्ड सम हाँ करने आए. हो गया पूरा. Hey, everybody done this? कोई बाकी है इसको?
चलो थर्ड सम ध्यान से। y is equal to log of ax square plus bx plus c. मारो डायलॉग। Differentiating with respect to x, derivative of y is equal to derivative of log of ax square plus bx plus c. ये आएगा dy by dx is equal to, चलो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा 1 upon ax square plus bx plus c. Into derivative of ax square plus bx plus c. तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to 1 upon ax square plus bx plus c into a constant ax square का डेरिवेटिव 2x plus b constant x का डेरिवेटिव 1 plus c constant डेरिवेटिव 0. तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 2ax plus b upon ax square plus bx plus c. That's your final answer. Hard solver? Both solver. हुआ? Yes, sir. चलो third question. Anybody writing this one? No. I cannot know fully. That's a child. चलो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट. y is equal to e raised to 5x square minus 2x plus 4. मारो डायलॉग. Differentiating with respect to x, derivative of y is equal to derivative of e raised to 5x square minus 2x plus 4. dy by dx is equal to e raised to 5x square minus 2x plus 4 into composite part है 5x square minus 2x plus 4. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है. dy by dx is e raised to 5x square minus 2x plus 4
into 5 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0। क्वेश्चन 3 हो गया। होमवर्क 1 चालू कर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा 10x माइनस 2 इंटू ई रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। That's your final answer. ब्रैकेट आएगा 10x माइनस 2 इंटू ई रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सेकेंड क्वेश्चन दोज हु आर स्टार्टिंग, वो ई के बदले ए है। सेकेंड क्वेश्चन ई के बदले ए लिख के करो। एवरीबडी क्लियर विद दिस? पार्थ हुआ कि नहीं? वैभव तू लिख ही नहीं रहा है ना? थोड़ा थोड़ा ये कैसा थोड़ा थोड़ा है तेरा? हुआ कि नहीं यहाँ तक? एवरीबडी चलो सेकेंड। y is equal to a raised to 1 plus log x। मारो डायलॉग। Differentiating with respect to x, derivative of y is equal to derivative of a raised to 1 plus log x dy by dx is, चलो a raised to 1 plus log x का डेरिवेटिव आएगा a raised to 1 plus log x into log a into composite part is 1 plus log x, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो। dy by dx is a raised to 1 plus log x into log a into 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो 0 plus 1 by x। फाइनल आंसर आएगा a raised to 1 plus log x into log a into 1 by x। That's your final answer for second sum. Clear है? हो गया। हाँ बोल वैभव। रिमोट नहीं है उसका। हाँ बंद करने का चालू करने का है? करना चालू।
एक काम कर मेरे को वो वाला चालू कर दे धैर्य वो वाला चालू कर पीछे देख रिमोट तेरे पीछे ही है चलो नेक्स्ट लास्ट वन y is equal to 5 raised to x plus log x. मारो डायलॉग differentiating with respect to x. दोनों बाजू डेरिवेटिव ऑफ y is equal to derivative of 5 raised to x plus log x. dy by dx is equal to चलो 5 raised to x plus log x का डेरिवेटिव आएगा 5 raised to x plus log x into log 5 into derivative of x plus log x. So this is 5 raised to x plus log x into log 5 into x का derivative 1 plus log x का derivative 1 by x. So that's your final answer. Check करो आया ये सबको? They need how much time? 1 minute. Oh, so sorry, sir. चलो यार listen now. चले देखेंगे छोड़ना पढ़ने में उन्होंने नहीं पढ़ेंगे y is equal to root of x plus 1. चलो डेरिवेटिव निकालो कैन आई से ये कॉम्पोजिट डेरिवेटिव है व्हाट इज योर कॉम्पोजिट पार्ट X plus 1. हाँ तो इधर डायलॉग लिखने का जरूरत है क्या ये एमसीक्यू है डायरेक्ट यू कैन डू dy by dx is equal to normal derivative 1 upon 2 into root of into derivative of x plus 1. तो ये आएगा 1 upon 2 root of x plus 1 into x का डेरिवेटिव 1 plus 0. Yes, sir. This gives you 1 upon 2 root of x plus 1. That's your derivative. Enough of talking. आया ये आंसर That's your option. C. चलो fourth करो. Those are finished. Start with fourth. हुआ ये? अरे तो सॉल्व किया था सब. Everybody done with this? No. Fourth one. चाचा F of x is e raised to ax square plus bx plus c.
They are asking f dash x. F dash x का मतलब तो नेक्स्ट स्टेप में f of x का सीधा f dash x लिखो. इसका नॉर्मल डेरिवेटिव विल रिमेन सेम. e raised to ax square plus bx plus c into derivative of ax square plus bx plus c. 2x plus bx plus b. तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा e raised to ax square plus bx plus c into चलो डेरिवेटिव ax स्क्वायर आएगा, a कांस्टेंट है, into 2x plus b into 1 Plus 0. plus 0. 2x plus b. Is that clear? Two ax plus b. Chalo, is that clear? Any doubts in this? Option कौन सा है? Start with the eighth one. All done with this? Eighth वाला शुरू करो. Y is equal to root के अंदर दिया है. Now they have not applied the bracket. You apply in bracket x plus root x. चलो ये कौन सा टाइप में है? Which type of formula? Root x वाला पैटर्न में जाएगा. What is the composite part? x plus x. Composite part क्या है? x plus root x. बरोबर से ध्यान से देखो. खाली x होना चाहिए था, उसके बदले x plus root x है. तो that is a composite part. तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा 1/2 into root of x plus root x into derivative of composite part which is x plus root x. तो ये हो जाएगा 1/2 into root of x plus root x into x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x. चेक करो ये ऑप्शन में है तो मार्क करो, नहीं तो सिंप्लीफाई करो. है ना ये ऑप्शन? तो कीप इट हियर. दैट्स इट. दैट्स योर आंसर. चलो, एनी डाउट्स इन दिस? Is this clear? So next. सबका question number 15. Question number 15. Y is equal to 1/√x. So now listen.
हाउ डू यू डू दिस? ये कौन सा टाइप में है? 1/x, लेकिन x की जगह पे क्या है? तो रूट x पूरा कंपोजिट पार्ट होएगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x? तो इसका नॉर्मल डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/√x into derivative of √x. You can, लेकिन then you have to match the answer with the options. वो तेरे को बेसिकली रेस टू माइनस हाफ आएगा, फिर नीचे जाएगा. So this is -1 upon √x का स्क्वायर is into 1 upon 2√x. चेक करो ये ऑप्शन में है क्या? Which option? मिला ये सी ऑप्शन. Is this clear? Any doubts in this? चलो पेज 148 पे 24. पेज 148 पे 24. इधर y नहीं है तो let y is equal to e raised to 3x square minus 6x plus 2. 3x square minus 6x plus 2. चलो इसका डेरिवेटिव आएगा e raised to 3x square minus 6x plus 2 into derivative of composite part is 3x square minus 6x plus 2. 6x minus 6. So this will become e raised to 3x square minus 6x plus 2 into 6x minus 6. चलो ये आएगा 6x minus 6 और इसमें 6 कॉमन ले लो क्योंकि ऑप्शन में वैसा दिया है. That's your answer. चलो, any doubts in this? No. Is this clear? समझ में आया ये सबको? Composite part वाला derivative. Now last question for the day, question number 33. Question number 33. Question 33. Y is equal to e raised to root of 2x. तो इसका डेरिवेटिव आएगा e raised to root 2x का डेरिवेटिव e raised to root 2x into composite part क्या है? Derivative of root 2x. Hey, is this clear? Okay, next step में ये हो जाएगा e raised to root of 2x. चलो अभी वापस डेरिवेटिव रूट 2x में व्हाट इज द कंपोजिट पार्ट? रूट के अंदर क्या होना चाहिए था सिर्फ, उसके बदले क्या है? तो रूट 2x का नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट ऑफ 2x. वापस इसका कंपोजिट पार्ट करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x. अरे रूट 2x नॉर्मल है क्या? नहीं, वो भी कॉम्पोजिट है ना. मतलब कॉम्पोजिट का डेरिवेटिव किया, वापस कॉम्पोजिट आया तो वापस उसका डेरिवेटिव करो. जब तक नॉर्मल नहीं होएगा तब तक डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते रहने. अभी चैनल से 2x नॉर्मल हो गया तो 2x का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में
e raised to root of 2x 1/2 into root of 2x into 2. तो 2 कैंसिल, बचेगा तुम्हारा डेरिवेटिव का आंसर. Is that clear? What is the option? A. That's your answer, option A. Clear है? You are doing homework one, cha sum and comment. Please try by yourself and discuss tomorrow. जिसका हो गया उसको कुछ नहीं है. Sir, 2x का 2x है सर. कौन सा टाइम? 2x. 2x. x की जगह पे 2x. तो अब नॉर्मल हो गया, कंपोजिट हो गया. मतलब ये वापस डेरिवेटिव रूट 2x में इंपोर्टेड पाया है. अच्छा वापस कंपोजिट तो ये कंपोजिट नहीं था. ये रूट 2x कंपोजिट है कि डायरेक्ट था? वही x की जगह पे खाली x की बचूंगा. not direct था. जब तक नॉर्मल इन शॉर्ट जब तक नॉर्मल नहीं मिलेगा तब तक